So, student, in this audio presentation, I am going to discuss about selling versus marketing. It is another topic from your chapter. So, I record this video. Now it is 10:30. Okay, in the evening. So I am not able to means give my loud voice for this presentation. So I request all of you, when you get this presentation, please use your earphone or headphone for better understanding. Okay, so let's start with the topic, selling versus marketing. If I ask you that what is selling, you is selling, any general people can say that selling means sell karna, and marketing means what, market karna. But I think yeah, about marketing and selling, you have some idea from second year. There we already got these topics, but in this degree level we are going to discuss this topic elaborately. Okay, from every point of view we are going to discuss about selling and marketing. So main motive of this topic is that what is the main differences of selling and marketing we need to discuss. But before discuss the differences between both the topics, we need to discuss about their meaning. Okay, let's start with the meaning. Here you have seen that it is written that ceiling theory believes that if companies and customers are drop the tax, then the customers are not going to purchase enough commodities produced by enterprise. Means it want according to selling theory, अगर हमने कस्टमर को वैल्यू नहीं दिया या फिर कस्टमर हमारा चीज़ नहीं खरीदा, तो हमारा जो सेलिंग कैपेसिटी है वो दिन ब दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. हमारा जगह में दूसरा कंपनी का सामान वो खरीदने लगेगा. सो इन डेट केस सेलिंग का मेन जो मोटो होता है, डेट इज़ कॉल मार्केट में क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द मार्केट, इसके बारे में उसको कुछ लेना देना नहीं है. द सेलिंग ओनली गिव 100% कंसंट्रेशन ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट. मतलब उसको कमोडिटी को बेच के ख़त्म करना ही उसका मेन काम है. और यू कैन से दैट ट्रांसफ़र द ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जैसे ही मैंने तुमको मेरा सामान बेच दिया तो तुम उसका ओनर हो गया. तो उसी तरह मतलब सेल करना ही उसका मेन मोटो होता है. सो सेलिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो selling concept only give concentration on increase the sale of products. So on the other hand, if we discuss the marketing, so in this page you see that marketing theory is not about selling. Okay, it's about making some business plan. Again, according to plan, it's also regarding as know the needs and wants of the customer. It's also give more emphasis on give fulfill the needs and wants of the customer. And accept this marketing also run with 4 P's or some elements, as you got earlier, that product, price, place, promotion. Product, what to produce. Product means ये नहीं कि product क्या है. Product means what to produce. Okay, what to produce or what to offer. Price means how to determine the price of the product. Place means which is the suitable place for selling the product. And promotion means how to promote the product by using different ways of promotion. सो इस तरह इफ़ यू डिस्कस द मार्केटिंग एंड सेलिंग का अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो मार्केटिंग इज़ मोर कॉम्प्रहेंसिव, मोर मीन्स वाइडर कॉन्सेप्ट इफ़ यू कंपेयर विथ सेलिंग. ओके, so this is all about marketing and selling. Now we are moving towards the difference between both of them. Okay, there are so many difference of marketing and selling, but here I am only discuss 10 points. Okay, which is very crucial for your upcoming exam. Or one question will come that explain write a note on selling versus marketing or distinguish between marketing and selling. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आंसर तुमको यही लिखना है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. So let's move towards our another मतलब पेज, that is difference between marketing and selling. अगर दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो हमको समझ में आ गया कि मार्केटिंग क्या है और सेलिंग क्या है. सो यहाँ पे लिखा है बिजनेस नोशन विच स्टेट्स इज कंज्यूमर एंड बिजनेस रिमेन अनरिटर्न
that then there will be not be simple save of organization product is a selling concept. Okay, मतलब कंज्यूमर अगर सामान खरीदना बंद कर दे या फिर सामान लेना बंद कर दे तो हमारा जो सेल है वो दिन ब दिन कम जाएगा और एक दिन जाके वो प्रोडक्ट मतलब हमारा रह जाएगा और फॉर दैट मे बी वी आर विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर दैट। तो सो सेलिंग मेन थिंग इज़ दैट तो सेल मोर एंड मोर प्रोडक्ट टू द कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। उसका अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो अबाउट मार्केटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पे लिखा है देखो तुम लोग जो बिजनेस ओरिएंटेशन विच टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय बिकमिंग बेटर देन अदर इन प्रोवाइडिंग कस्टमर्स इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है मेनली सेल इंक्रीज करना और मार्केटिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है सेल से ज़्यादा कस्टमर्स का नीड्स एंड वांट्स को वैल्यू देना। अगर नीड्स एंड वांट्स को कस्टमर का अगर नीड्स एंड वांट्स को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो सेल भी ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट सेल इंक्रीज करने पे ध्यान देता है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर पे ध्यान देता है। ओके, सो इसके अलावा नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। सो इसको देखो अच्छा से समझना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में लिखा है डायरेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टुवर्ड्स माइंड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। मतलब गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूमर के माइंड तक ले जाना ही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या गुड्स मार्केट में नया है या क्या सर्विस अभी नया अवेलेबल है उसको कस्टमर के दिमाग में डाल देना ही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर उसका ऑपोजिट देखें तो मतलब कंज्यूमर का माइंड को गुड्स एंड सर्विस में लाना, ठीक है। मतलब कंज्यूमर का दिमाग को में ये चीज़ मार्केट में आया है ये दिमाग में लाना। तो एक होता है कि कंज्यूमर माइंड को गुड्स एंड सर्विस की तरफ लिया जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में गुड्स एंड सर्विस को मतलब कंज्यूमर की तरफ लिया जाता है, ठीक है। अपोजिट है दोनों, अंडरस्टूड। ये फिर से मैं बोल देता हूँ, डायरेक्टिंग गुड्स एंड सर्विस टुवर्ड्स द माइंड ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर का माइंड की तरफ लेके जाता है गुड्स एंड सर्विस को। और उसका अपोजिट जो मार्केटिंग है उसमें बोला है गया है कि कंज्यूमर को माइंड को गुड्स एंड सर्विस की तरफ लाया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर इस पॉइंट में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो तुम लोग मुझे पूछ के उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। थोड़ा हो सकता हो पजल हो सकता है इसमें, लेकिन अच्छा से अगर इसको अच्छा से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। सपोज़ एक मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, तो ये प्रोडक्ट जो आया है कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट का यूजिंग क्या है या फिर ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर कोई भी नया सर्विस अगर एयरटेल जियो लॉन्च किया है तो ये सर्विस तो क्या है, उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये कस्टमर का दिमाग में ये लाना काम किसका है, मार्केटिंग का है, ठीक है। और कस्टमर का दिमाग को उस चीज़ की तरफ लाना सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर कस्टमर के दिमाग में मार्केटिंग लेके आता है फिर कस्टमर दिमाग में लेके उसको उस प्रोडक्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो पहले मार्केटिंग कस्टमर का दिमाग में ही क्रिएट करता है, फिर वो दिमाग में जो बसा हुआ है उसको लेके वो ख़रीदने को जाता है। सो एक दिमाग में डालता है और दूसरा उस दिमाग को डालने के बाद ख़रीदने के लिए बेच जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन इज़ selling concept. Okay, next one is called another definition here given, the initial point of marketing concept is target market। मतलब मार्केटिंग सारा मार्केट को टारगेट करके चलता है। देखो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, रिच कस्टमर होता है, मिडिल क्लास का भी होता है, लोअर क्लास का भी होता है। तो तुम्हारा टारगेट क्या है, गांव का है, शहर का है, या फिर किस तरह का कस्टमर तुम्हारा टारगेट है, इसका मेन जो मोटो है वो मार्केटिंग का है। वो टारगेट लेके चलता है कौन सा मार्केट में वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। और इसका अगेंस्ट में अगर देखें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में फैक्ट्री उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर मार्केटिंग के देखें तो वो स्टार्ट होता है रिसर्च और ऑब्जर्वेशन। रिसर्च और ऑब्जर्वेशन कहाँ पे करते हैं वो लोग, मार्केट में करते हैं। और सेलिंग कहाँ से शुरू होता है, फैक्ट्री से, क्योंकि फैक्ट्री में ही जो है वो सामान बनता है, उसके बाद उसको सेलिंग के लिए भेजा जाता है, अंडरस्टूड। तो एक रिसर्च करता है कौन सा मार्केट किस चीज़ के लिए अच्छा है, और दूसरा उस चीज़ को बनाता है, और उसको बनाने के लिए फर्स्ट किया जाता है वो फैक्ट्री में ज़्यादा ध्यान देता है। तो एक मार्केट में ध्यान देता है और दूसरा फैक्ट्री में ध्यान देता है। दिस इज़ द अनदर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड
तो फोकस के बारे में यहाँ पे बोला है। तो कस्टमर नीड पे मैंने पहले भी बोल दिया है तुम लोगों को। फर्स्ट क्या में देता है, कस्टमर नीड पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देता है मार्केटिंग। और सेलिंग जो है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारा स्टॉक में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने में ध्यान देता है। तो एक है नीड फुलफिल करता है और एक जो है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए मतलब ट्राई करता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव। मार्केटिंग क्या होता है, ज़्यादातर बाहर में रहता है। बाहर में मतलब क्या, मार्केट में घूमता है, इंफॉर्मेशन लेता है मार्केट के बारे में, या फिर क्या प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर को, कैसा चाहिए, ये सब के बारे में सोचते हैं। ये हो गया आउटर वर्क। तो आउटर वर्क कौन करता है, मार्केटिंग करता है। और सेलिंग जो है वो फैक्ट्री को लेके बिजी हो, अंदर में सामान बना रहा है। तो अल्टीमेटली हो गया इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। तो एक हो गया आउटसाइड इन, एक हो गया इनसाइड आउट। ठीक है, बाहर से अंदर लाने का काम किसका है, मार्केटिंग का। और अंदर से बाहर सामान ले जाने का काम किसका है, सेलिंग का। ठीक है, याद रखना, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। सो बाहर से अंदर जो है वो हो गया मार्केटिंग, और अंदर से बाहर जो है हो गया सेलिंग। सो आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट, these are the two perspective difference between the marketing and selling. Okay, next move towards the another difference between both, that is called सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज़ एसेंस ऑफ मार्केटिंग। मैंने पहले ही बोला था कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को वो लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और नीड्स और वांट्स, मेरा सपोज़ मेरा कुछ नीड्स है, तो उसके हिसाब से अगर कोई मुझे फुल्ली सेटिस्फेक्शन दे, सपोज़ एक मैं होटल में गया हूँ, मैंने बोला हूँ कि मुझे एक चम्मच चाहिए, तो उसने एक चम्मच दिया। फिर बोला कि मुझे ये चाहिए, तो उसने वो भी दिया। अल्टीमेटली मेरा नीड्स एंड वांट्स वो फुलफिल कर रहा है, तो अब मैं सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मैं किसी होटल में, ये है क्या, वो बोलता है नहीं है, वो बोलता है वो क्या, वो नहीं है, तो अल्टीमेटली वो मेरा सेटिस्फेक्शन जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उसका कॉन्वर्सली अगर देखा जाए तो सेलिंग क्या करता है, टाइटल और पोजीशन को चेंज करने में ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब टाइटल और सेंस इस मीन्स सेलिंग में ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि जैसे ही मैंने एक सामान सेल किया, तो मतलब वो सामान, सपोज़ मैंने तुमको एक सामान सेल किया, तो जैसे ही मैंने सेल किया उसका एक्सचेंज में मैंने मनी ले लिया और तुमने सामान मिल गया, तो उस दिन से मैं नहीं बोल सकता कि उस सामान का मालिक मैं हूँ, मालिक तुम हो, क्योंकि तुमने वो पैसा देके खरीद लिया है। तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। सो दिस इज़ अगेन डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। एक नीड्स एंड वांट्स में ध्यान देता है और एक ओनरशिप पर्सन टू पर्सन चेंज करने में ध्यान देता है बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, अगर मार्केटिंग को देखा जाए तो ये बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। इसमें ढेर सारा चीज़ आ जाएगा, ब्रांडिंग, लेबलिंग, मैंने पढ़ाया था ना, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सारा चीज़ जो है मार्केटिंग का अंदर ही आ जाता है। और सेलिंग जो है इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, और बिजनेस प्लान करता है और गुड्स को एक पोजीशन में ला के फिर उसको मार्केट में सेल कर देता है। सो इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग का काम सेलिंग के बाद भी ख़त्म नहीं होता है, वो वारंटी गारंटी ये सब चलता ही रहता है। तो मार्केटिंग भी चलता ही रहता है, फीडबैक लेता है, फिर उसके हिसाब से और ज़्यादा क्वालिटी अच्छा करने का कोशिश करता है। तो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफरेंस करें तो मार्केटिंग बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसका अंदर अगर हम बोले तो सेलिंग भी आ जाएगा। और अगर दोनों को एक्स्ट्रा से देखें तो सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट ही है, तो इसलिए सेलिंग मार्केटिंग से एक छोटा कॉन्सेप्ट है। सो वन इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वन इज़ शॉर्टर कॉन्सेप्ट। ओके, so this is very easy. Next we are moving towards the another topic, that is called, ये पे लिखा है मार्केटिंग का ज़्यादातर काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज मीन्स व्हाट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मतलब सेटिस्फेक्शन देना, ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स एंड वांट्स फुलफिल करना। और जितना हमारा कस्टमर बढ़ता जाएगा उतना हमारा सेलिंग भी बढ़ेगा, और जैसे ही सेलिंग बढ़ेगा हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उसका अगेंस्ट में अगर तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। वो एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है कि एक महीना में मुझे 10,000 पीस सेल करना है, 20,000 पीस सेल करना है, एक टारगेट लेके चलता है। एंड बाय दिस वे दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द सेल। तो मार्केटिंग जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ध्यान देता है, और सेल जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन में ध्यान देता है। सो दिस इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। नंबर 9 में लिखा है ये सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है प्रमोशन एंड परsuasion में ध्यान देता है। बट अगर मार्केटिंग को देखूं तो वो सेलिंग में भी ध्यान देता है, प्रमोशन में भी ध्यान देता है, परsuasion में भी ध्यान देता है। उसके अलावा मैंने पहले ही बोल दिया था तुम लोगों को, प्रोडक्ट, प्राइस, पेज, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो सब कुछ पे ध्यान देता है। सो अल्टीमेटली ये सिर्फ प्रमोशन एंड परsuasion में है, और उसका अगेंस्ट में हम लोग देखें तो उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कौन कवर करता है, मार्केटिंग कवर करता है। सो ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। उसके अलावा अगर नंबर 10 में देखें, जो लास्ट हमारा डिफरेंस है, तो
मतलब अगर मार्केटिंग में देखा जाए जो मार्केटिंग मिक्स है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, तो उसका सेकेंड जो है प्राइस। प्राइस मीन्स प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ता है। सो प्राइस जो डिटरमाइन करता है ये मार्केट में ढेर सारा फोर्स होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो एग्जांपल देखो, डिमांड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो इसका ऊपर डिपेंड करके प्राइस ऊपर जाता है और नीचे जाता है। ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्राइस उसका ऊपर डिपेंड जाता है। अगर ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस कमेगा, ठीक है। ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा और कम डिमांड है तो प्राइस कमेगा। तो उसके हिसाब से मार्केटिंग प्राइस डिटरमाइन करता है। एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट में मतलब क्या होता है, जो हमारा सामान बनाने में एक कॉस्ट होता है, कोई भी सामान बनाने में हमको खर्चा होता है, वो खर्चा का ऊपर डिपेंड करके हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो सेल जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा, सेलिंग जो है वो कॉस्ट को कवर करने का कोशिश करता है, और मार्केटिंग जो है वो कॉस्ट तो ही नहीं, उसके अलावा भी अगर डिमांड ज़्यादा हो तो कॉस्ट से भी डबल कॉस्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑफ द सिचुएशन। तो ये मैं छोटा मोटा एक समरी दिया हूँ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अभी शायद 11 बज रहा है रात को। सो आई थिंक तुम लोग समझ जाओगे, पहले भी ये टॉपिक तुम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका कंक्लूजन में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर दोनों को डिस्कस किया जाए तो मार्केटिंग इज़ अ मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन सेलिंग, ठीक है। और अगर इजी सेंस में बोले तो सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ओनरशिप, सब ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। So this is the all about means the difference between the marketing and selling. I hope you understood, and अगर समझ में नहीं आया तो your queries and doubts are most welcome. Please send me personally to my personal WhatsApp number if you have any doubt and queries. Thank you so much everyone.